Hello everyone, this is Sivraj Gurjar and we are basically discussing vortex motion. I have discussed what are vortex line and some question based on that. Today we'll see a particular type of vortex lines. Okay, rectilinear vortices. Okay, इस चैप्टर से मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है, आई थिंक 16 और 17 विल डिस्कस दैट क्वेश्चन. ठीक है. So first let us define what are rectilinear vortices. Okay, so basically it's a special type of vortices. जो vortex है उसी का जो plural है वो vortices है. ठीक है. So देखो, rectilinear vortices are in fact those vortices in which the vortex lines will be parallel. Okay, they will be straight and they will lie along generator of a circular cylinder, and the motion of fluid will be such that it will be perpendicular to the generator of that particular uh, cylinder. Okay, so basically what will happen that let us say this is a circular cylinder. ठीक है. So when we say कि जो vortices है they are rectilinear, that means जो vortex line होगी they will be straight and they will be parallel. ठीक है, and they will lie along the generator of a cylinder. In the 3D basically will study कि जो भी generator होते हैं, generator means बेसिकली जनरेटर्स का लोकस विल गिव दैट पर्टिकुलर कॉनिक. ठीक है, तो जो जनरेटर होते हैं सिलेंडर के वो उसके मीन्स उसके सरफेस पे लाई करेंगे. ठीक है, जनरेटर मीन्स विच जनरेट दैट कॉनिक. ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि जितनी भी वोर्टेक्स लाइन होगी दे विल बी अलोंग द जनरेटर्स ऑफ द दिस सर्कुलर सिलेंडर. ठीक है, सो बेसिकली डेल क्रॉस जो क्यू है उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग दिस जनरेटर ऑफ द सिलेंडर. बट जो इसमें जो क्यू वेक्टर होगा बेसिकली मोशन होगा वो इस प्लेन में होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ जनरेटर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द जनरेटर. सो बेसिकली देखा जाए तो ये जो इसका क्रॉस सेक्शन होगा इसके ऊपर मोशन हो रहा होगा. मीन्स ये जो क्रॉस सेक्शन है जो सर्कुलर बेस है इसका बेसिकली इस पे ही मोशन हो रहा होगा वोर्टिसेस का. और इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर वोर्टिसेस द मोशन विल बी इन थीटा डायरेक्शन ओनली. मीन्स जो थीटा, जैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट में बात करते हैं, इफ दिस इज सम पॉइंट पी आर कोमा थीटा. ठीक है, दिस इज थीटा, देन द मोशन विल बी क्यू थीटा ओनली. देयर विल नॉट बी एनी क्यू आर कंपोनेंट. क्यू आर विल बी जीरो इन फैक्ट इन रेक्टिलिनियर वोर्टिसेस केस. ठीक है, सो लेट अस define it formally. ठीक है, so basically rectilinear vortices, yeah, in case of rectilinear vortices vortex lines are straight lines parallel and lie along the generators of circular cylinder. Okay, motion being in the plane perpendicular to the generators. Okay, so this is the formal definition. Okay, अब देखो, अब let us discuss what will be the stream function, velocity potential तो basically वोर्टिसेस पे तो होगा नहीं, बिकॉज वोर्टिसेस क्या होते हैं, ये तो रोटेशनल फ्लूइड के लिए होते हैं. और ये हमने डिस्कस किया था कि जो बेसिकली वेलोसिटी पोटेंशियल होता है दैट एग्जिस्ट ओनली फॉर रोटेशनल फ्लूइड, इररोटेशनल फ्लूइड्स व्हेन डेल क्रॉस क्यू कर्ल ऑफ क्यू इज जीरो. ओके, जब कर्ल ऑफ क्यू इज जीरो है तो वोर्टेक्स का तो मतलब ही नहीं बनता. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस स्ट्रीम फंक्शन ड्यू टू वोर्टिसेस. ठीक है, अच्छा देखो इसमें क्या है,
basically we are basically restricting ourselves to only rectilinear vortices. ठीक है. So in this case, what will happen that the motion is being considered only on a plane. So let us assume that the plane is xy plane. ठीक है. So in x direction we are assuming velocity u, and in y direction it is v. Okay, of course w will be 0 here because motion is only in the plane perpendicular to the generator. ठीक है. So basically अगर देखा जाए तो इसमें अगर स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन लिखी जाए, स्ट्रीम लाइन equation of streamline, so that will be dx over u dy over v, and w तो वैसे भी 0 है. So this, अच्छा, so इसको we can write v dx minus u dy equals to 0. ये हम कर सकते हैं. Now equation of continuity, by equation of continuity we can say that del u del x plus del v del y, w है नहीं, so this should be 0. So from this we can say that this equation will be exact. ये तो हमने discuss किया. This will be exact differential equation. Let us call this one. So equation 1 is exact differential equation on account of motion obeying continuity equation, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, ये तो हमने डिस्कस किया है. अगर इसमें कुछ डाउट है देन जो हमने स्ट्रीम फंक्शन या वेलोसिटी पोटेंशियल वाले चैप्टर डिस्कस किए वो लेक्चर आप देख सकते हो दोबारा. ठीक है. नाउ सो ऑफ कोर्स इससे वी कैन से दैट वी डी एक्स माइनस यू डी वाई विल बी सम डी साई विच इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन. ठीक है. अच्छा, अब देखो अगर इसमें वोर्टेक्स लाइंस की बात करें, वोर्टेक्स लाइंस, इक्वेशन ऑफ वोर्टेक्स लाइन क्या होगी? this we discussed. This is dx over x component of vortex line. Vortex line की direction is nothing but del cross q that we denoted by this vector. So x or this can be written as x component plus y component plus z component, ऐसा लिख सकते हैं इसको. So this will be this dy over and dz over. ठीक है. बट देखो इसमें अगर डेल क्रॉस क्यू किया जाए तो ये क्या आएगा, आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड यू वी एंड 0. डब्ल्यू तो 0 है इस केस में. ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज आई कैप. अब देखो डेल 0 डेल वाई 0 एंड u विद रिस्पेक्ट टू z विल बी 0 बिकॉज u जो है u एंड v are restricted in the xy plane, so u is of course independent of, u is function of x and y only. Similarly v is also function of x y only. So basically del u del z is equals to 0 and del v over del z is also 0. ठीक है. So on this what we can say that this part is 0 minus j k, this is again 0 k k. This is del u del v del x minus del u del y. So this is v. ठीक है. So ये आ गया. So देखा जाए तो the x component of vorticity is 0, y component is also 0 and z component is del v del x minus del u over del y. ठीक है. ये वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था आई थिंक, यहाँ तक जो वोर्टेक्स लाइन की इक्वेशन जब हमने डिस्कस की थी. ठीक है. अच्छा देखो ये इक्वेशन एग्जैक्ट है. सो दिस कैन बी रिटन एज del psi over del x dx plus del psi over dy dy. Or from this what we can say that basically del psi over del x is v and del psi over del y is minus u. Okay, ये तो we know from the stream function के कॉन्सेप्ट से. पहले भी जब when we studied टू डिमेंशनल फ्लूइड फ्लो तब भी ये डिस्कस किया था. And of course this is nothing but two dimensional fluid flow only in case of rectilinear vortices. ठीक है. तो अब देखो, अब यहाँ से what we can say that the z component of vortex motion is del v del x minus del u del y. और जो v है वो अभी हमने डिराइव किया, that is nothing but del psi over del x minus del over del y, और u जो है that is minus del psi over del y. और this can be written as del square psi del x square plus del square psi
del y square, दिस इज द z component, ठीक है, ऑफ vorticity। x एंड y component तो जीरो है वैसे भी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इससे व्हाट वी कैन से, यहाँ से वी कैन से दैट z component, yeah, we can say that vorticity is equals to del square psi del x square plus del square psi del y square k cap on the plane of vortices, ठीक है, ये होगा। बट आउटसाइड आउटसाइड vortices at any point p x y this will be जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वोर्टिसेज है उसके बाहर तो बेसिकली जहाँ वोर्टिसेज होते हैं वहीं पे रोटेशनल फ्लूइड होगा, उसके बाहर तो फ्लूइड विल बी इरोटेशनल, ओके, बिकॉज फ्लूइड विल बी इरोटेशनल, ठीक है, आउटसाइड वोर्टिसेज। सो वहां पे क्या हो जाएगा, ये जो ये हमने डिस्कस किया कि व्हेन फ्लूइड इज इरोटेशनल, डेल स्क्वायर साई एज वेल एज डेल स्क्वायर फाई दोनों जीरो हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट डेल स्क्वायर साई ओनली, दिस इज डेल स्क्वायर साई के। बट अगर वोर्टिसेस के बाहर की बात करें तो वहां पे फ्लूइड इरोटेशनल है, सो वहां पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और वो बाहर जो है वोर्टिसेस के बाहर तो फ्लूइड इरोटेशनल हो गया, तो वहां पे वेलोसिटी पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एंड दैट विल आल्सो सेटिस्फाई दिस लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। अगर पोलर फॉर्म की बात करें, पोलर फॉर्म, सो जो ये लाप्लास इक्वेशन है, डेल स्क्वायर इज रिटन एज डेल डेल आर स्क्वायर प्लस 1 by r del over del r plus 1 by r स्क्वायर डेल थीटा स्क्वायर, ये ऑपरेटर होता है इन पोलर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये सब व्हेन विल स्टडी पीडी, उसमें जब हीट इक्वेशंस, वेव इक्वेशंस वो सब डिस्कस करेंगे, देन आई विल डिस्कस दिस आल्सो कि पोलर फॉर्म और इसमें दोनों में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट अभी भी आते हैं क्वेश्चन, बट फॉर लेसर मार्क्स। प्रीवियसली 30 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आते थे इससे, हीट वेव, ये 2018 में पूछा है पोलर फॉर्म में, इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। सो विल डिस्कस दैट, बट फॉर इन दिस चैप्टर फॉर आवर पर्पस दिस इज सफिशिएंट कि जो डेल स्क्वायर होता है, बेसिकली ये जो लाप्लास ऑपरेटर होता है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू दिस इन पोलर फॉर्म, ठीक है। तो अब देखो, इसका मतलब हमने ये देखा है कि डेल स्क्वायर जो साई है वो जीरो है आउटसाइड वोर्टिसेस किसी पॉइंट पी पे, तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी डेल स्क्वायर डेल आर स्क्वायर साई प्लस 1 बाई आर डेल साई डेल आर प्लस डेल स्क्वायर साई आर स्क्वायर डेल थीटा स्क्वायर, दिस शुड बी जीरो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है। फर्दर ये हमने देखा कि जो रेक्टिलिनियर वोर्टिसेस, अच्छा व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग दिस इज ओनली फॉर रेक्टिलिनियर वोर्टिसेस, ठीक है। इस केस में क्या हमने देखा था कि जो है फ्लूइड फ्लो परपेंडिकुलर टू मींस इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा है, क्यू थीटा कंपोनेंट है। तो बेसिकली देखा जाए तो साई विद रिस्पेक्ट टू साई जो है, साई इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, और ऐसा भी कर सकते हैं कि क्यू थीटा क्या होता है, क्यू थीटा इज डेल साई ओवर डेल आर, ठीक है, एंड क्यू आर क्या होता है, डेल साई ओवर आर डेल थीटा, ये हमने डिस्कस किया था, माइनस डेल साई और आर डेल थीटा होता है क्यू आर, पर क्योंकि क्यू आर तो इसमें जीरो है, सो डेल साई और डेल थीटा जीरो हो जाएगा ऑफ कोर्स, या साई इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इससे व्हाट वी कैन से इन रेक्टिलिनियर vortices due to rectilinear vortices stream function 8 p r comma theta outside the vortices, ठीक है, वो क्या होगा, इसमें देखो, अब देखो जब साई इज इंडिपेंडेंट थीटा, तो साई वैसे होना क्या था, साई में डिपेंड ऑन आर एंड थीटा, पर थीटा पे तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब साई विल बी फंक्शन ऑफ आर ओनली, सो वी कैन, ये जो पार्शियल है इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, डी स्क्वायर साई डी आर स्क्वायर प्लस
1 by r d psi over dr and this part is 0 because psi is independent of theta. So यहाँ से what we can say that, अब देखो इसको अगर r से मल्टीप्लाई कर दिया जाए थ्रू आउट, ऑफ कोर्स r is not 0, ऑलवेज r is not 0, ठीक है। तो r से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज r d स्क्वायर डेल r स्क्वायर प्लस d psi dr इज 0, ठीक है। और दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड एज d ओवर dr r d psi ओवर dr, ऐसा कर सकते हैं इसको 0। देखो बाय पार्ट अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r का करेंगे तो 1, तो ये आ जाएगा व्हेन r विल बी लेफ्ट, एंड इसका करेंगे तो r इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखो, अब इसमें क्या कर सकते हैं, दिस इज r d psi ओवर dr, 0 means this is a constant. Let us call this constant c is nothing but constant of integration, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बिकॉज psi is function of r only, तो of course this c will be constant, it won't depend on theta and anything, ठीक है। और यहाँ से we can say that d psi over dr is c by r, ठीक है। so यहाँ से we can say that d psi is nothing but c by r dr, इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो psi क्या आ जाएगा यहाँ से, c ln r, दिस इज c टाइम्स ln r, ये समझ में आता है। अब अच्छा, क्योंकि आउटसाइड वोर्टिसेस जो है मोशन जो है वो इरोटेशनल है, ठीक है। सो वेलोसिटी पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा, सो वेलोसिटी पोटेंशियल फाइज होगा। अच्छा, बाय सीआर इक्वेशन, कोची रेमन इक्वेशन, ये हमने डिस्कस किया था कि जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है दैट इज नथिंग बट फाई प्लस आयोटा साई, सो डेल फाई ओवर डेल आर इज इक्वल टू डेल साई ओवर आर डेल थीटा, एंड डेल फाई ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय आर डेल साई ओवर, no, okay, दिस इज डेल फाई ओवर आर डेल थीटा, दिस इज डेल साई ओवर डेल आर, ठीक है। ये सी आर इक्वेशन होती है इन पोलर फॉर्म, ठीक है। दिस आई हैव डिस्कस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक लेक्चर है बाय द हेडिंग कोची रेमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, उसमें मैंने ये अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। नाउ अच्छा, ये हमारे पास साई आ गया, अभी हमारा मकसद है फाई ऑब्टेन करना। सो डेल फाई, अच्छा हमारे पास साई है, चलो ठीक है। तो इसका मतलब डेल फाई ओवर डेल आर क्या होगा, 1 बाई आर डेल साई डेल थीटा, डेल साई डेल थीटा, तो साई इज इंडिपेंडेंट थीटा, तो डेल साई डेल थीटा तो ऐसे भी 0 है, सो दिस इज 0। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट फाई इज फंक्शन ऑफ थीटा ओनली, ऐसा बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, फाई इज कॉन्स्टेंट विच में डिपेंड ऑन थीटा। सो दूसरी इक्वेशन क्या है इसमें, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, यहाँ से अगर डेल साई ओवर डेल आर करेंगे तो सी बाई आर आएगा, ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, और यहाँ से डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो देखो अब इसमें ये इक्वेशन अगर यूज की जाए, सो डेल फाई ओवर आर डेल थीटा इज इक्वल टू -1 और डेल साई ओवर डेल आर सी बाई आर, ठीक है। सो आर से आर कैंसिल हो गया, सो डेल फाई इज नथिंग बट माइनस सी डी थीटा, बट फाई इज ओनली फंक्शन ऑफ थीटा, ये हमने अभी देखा। सो ये डेल को तो हम एग्जैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज डी इन फैक्ट, सो यहाँ से वी कैन से दैट फाई इज माइनस सी थीटा, ठीक है। तो हमारे पास साई तो आ गया सी एल एन आर एंड फाई आ गया हमारे पास माइनस सी थीटा, आई होप ये समझ में आता है। सो साई एंड फाई हमारे पास आ गए, ठीक है। और तो अब कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखा जा सकता है इसका कैसे, डब्ल्यू इज फाई प्लस आयोटा साई, और फाई इज माइनस सी थीटा प्लस आयोटा सी साई सी एल एन आर। और अगर यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से सी माइनस सी बाहर ले लिया जाए, माइनस सी आयोटा अगर बाहर ले लिया जाए, सो दिस विल बी बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, थीटा डिवाइड बाई आयोटा माइनस एल एन आर, आयोटा सी बाहर ले लिया, ठीक है। और यू कैन से दैट सी आयोटा, सिंपल सी आयोटा अगर ले लें, माइनस और बाहर ले लें इससे, तो दिस इज आयोटा थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट सी आयोटा बाहर लेंगे तो दिस विल बी द इक्वेशन, ठीक है। सी आयोटा ये क्या, दिस इज नथिंग बट आर ई रेज टू आयोटा थीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो दिस इज आयोटा टाइम सी एल एन, अच्छा कोई भी पॉइंट जेड
कोई पॉइंट P है Z, या इसको वी कैन राइट इन कार्टेशियन इट विल बी x, y, इन पोलर फॉर्म इट विल बी r theta. So Z is r e raised to iota theta. So this can be written as Z. So W क्या आ गया हमारे पास, iota C ln Z. ठीक है. So this is complex potential due to vortices, rectilinear vortices. ठीक है, outside those vortices of course. ठीक है. अब देखो, ये तो हमने तब किया जब जो हमने जो vortices है उनको ओरिजिन पे एज्यूम किया. ठीक है. अगर इफ vortex is at Z naught, then W will be given by iota C ln Z minus Z naught. जैसा कि हमने सोर्स और सिंक में डिस्कस किया था. सिमिलरली दैट दिस W is nothing but कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल. और यहाँ पे जो C है दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसको हमें इसकी भी वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी. ठीक है. तो अच्छा, ये भी मैंने डिस्कस किया था कि सर्कुलेशन इज डिफाइंड एज Q डॉट डी आर. ठीक है, अलोंग ए क्लोज कर्व. ठीक है. तो अब देखो, ये इस प्लेन में है. मान लो ये जो है इसकी रेडियस लेटस से ए है. कोई सिलेंडर है, मान लो ये, जिस सिलेंडर पे की जनरेटर के अलोंग ऑफ कोर्स हमारी जो वोर्टेक्स लाइन है वो लाई कर रही है. तो इस प्लेन में मोशन हो रहा है इस टाइप. तो अगर इसके सर्कुलेशन की बात करें तो ये क्या होगा, क्यू आर डी आर प्लस क्यू थीटा आर डी थीटा, ये होगा ये. और यहाँ पे और इसको अलोंग द क्लोज कर्व सी, और क्यू आर तो इसमें है नहीं. ओके. सो ये इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज कर्व सी, वहाँ पे सी क्या है, दिस इज नथिंग बट मॉडुलस जेड इक्वल्स टू ए. ठीक है. अब देखो, इसमें क्यू आर तो जीरो है एंड क्यू थीटा इज नथिंग बट डेल साई ओवर डेल आर. ये क्यू थीटा है. ठीक है. और साई क्या है, साई इज सी एल एन आर. सो डेल साई और डेल आर क्या हो जाएगा, सी डिवाइड बाई आर. ठीक है. तो इसमें अगर इन सब की वैल्यू लिखी जाए, जीरो प्लस क्यू थीटा इज दिस ओनली. सो सी बाई आर इंटू आर डी थीटा. थीटा वेरी फ्रॉम 0 से 2 पाई. कंप्लीट सर्कुलेशन मीन्स कंप्लीट जो सर्कुलेशन होगा. ठीक है. सो आर से आर कट गया, सी डी थीटा 0 से 2 पाई. दिस इज नथिंग बट 2 पाई सी. ओके. और दिस सर्कुलेशन को भी डिनोट बाई के. ओके. सो के इज नथिंग बट सर्कुलेशन. ठीक है. सो यहाँ से वी कैन से दैट सी इज के डिवाइड बाई 2 पाई. सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई के इक्वल्स टू के डिवाइड बाई 2 पाई. सो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल वो क्या है, आयोटा सी दैट इज के डिवाइड बाई 2 पाई एल एन जेड माइनस जेड नॉट फॉर अ vortex kept at point z naught. This will be the complex potential due to that vortex, outside vortex of course. ठीक है. and the vortex is kept at z naught. this k जो circulation है, this is known as strength of vortex. ठीक है. तो आई समझ में आता. अगर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, दिस इज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, तो वी नो दैट वेलोसिटी क्या होगी, q इज नथिंग बट मॉडुलस डी डब्ल्यू और डी जेड. सो दिस इज अगर इसका मॉडुलस लेंगे तो k डिवाइड बाई 2 पाई. डिफरेंशिएशन क्या होगा, z माइनस जेड नॉट. पर मॉडुलस लेंगे तो आयोटा तो 1 हो गया, z माइनस जेड नॉट का मॉडुलस ये हो गया. मान लो ये वर्टेक्स यहाँ रखा गया, वर्टेक्स ये कोई z पॉइंट है जिसपे वी आर सीइंग द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल और वेलोसिटी, देन ये z है. सो ये डिस्टेंस अगर इसको r एज्यूम किया जाए तो z माइनस जेड नॉट का मॉडुलस इज नथिंग बट r. तो इसको वी कैन राइट k डिवाइड बाई 2 पाई r. Okay, so this will be the velocity at a point, a general point P, due to a vortex of strength K. Okay, so velocity at P, let us call the point x comma y, due to a vortex of strength K, that is equals to K divided by 2 pi r, where r is of course modulus z minus z. Okay, vortex of strength K kept at z naught. ठीक है. आई होप समझ में आता है. सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स.